Okay, so Assalamu alaikum and good morning everyone once again to all of you. Hope you people are doing well. Yesterday, I think we have started with the first two types of cable that comes into the guided media. Okay, and in guided media, we have already seen the twisted pair cable, which is further divided into the two types of cable. One was shielded twisted pair cable, and the second was unshielded twisted pair cable. This shielded and unshielded co we can we can categorize in the different ways, like the shielded twisted pair cable is having some kind of shield, some kind of metal shield, we can say. So in order to protect it from other, or we can say external parameters, or external we can say the like we can save it from the other external things. Okay, अब उसमें जो जो भी आता है. So with the help of this extra with this metal shield we can protect it. Okay, not we can protect it, but the cable is getting protected. Okay, because अंदर का जो जो डेटा जा रहा है that is very very important. Okay, हो सकता है आप कुछ ट्रांजेक्शन कर रहे हो. Okay, so बाकी दूसरे एक्सटर्नल चीज़ों से जब हम लोग उसको बचा के रखेंगे, so it will be a beneficial. Then we also came to know that के कहाँ पर थे हम लोग, shielded and unshielded twisted pair cable का diagram we have seen, and we found that we have the metal shield in the STP and there is no metal shield. लेकिन दोनों का अगर कुछ इसका अगर फायदा है तो इसका नुकसान भी है. मेटल शील्ड लगाने की वजह से the cable gets heavier. Okay, and it cost more because of this particular metal shield which is wrapped around the two conductors. Okay, तो उसकी वजह से थोड़ा सा महंगा तो ज़रूर हो जाता है, बट थोड़ी सी क्वालिटी मिलती है. Then we have seen the categories. They are connectors, RJ45 male and female connectors. Then coaxial cable. In coaxial cable, the construction we have already seen. We are having two conductors. We are having two conductors in this particular cable, and both the wires are both the cables are using, or we can say sharing the common axis. Okay, common axis मतलब एक केबल और उसके बाहर दूसरा केबल, बट दोनों मतलब आपस में ना मिले, इसके लिए वी आर हैविंग we are having insulators, or we can say non-conducting material. Okay, if we put non-conducting material between the two metal, then what will happen? If you are having two wires and उसके बीच में अगर नॉन कंडक्टिंग मटेरियल है, so it will be for the मतलब के नॉन ओवरलैपिंग है, मतलब के दोनों को सेपरेट करने के लिए बेसिकली. तो आप लोग समझ गए, बस इतना काफ़ी है. So this diagram we have already discussed. This is the standard coaxial cable standard RG59, RG58, RG11 for use for different purposes. Then also we have seen the connector for coaxial cable, that is BNC connector, BNC terminal connector, and BNC terminator. These are the three examples. Okay, three diagrams. Coming to the main topic, that is fiber optic cable. Actually, I was planning to have one quiz for this also, but actually, unfortunately, the questions are with me, but I have not prepared the that quiz. आज था मौका लेने का, आज हम लोग ले सकते थे, लेकिन आज भी पॉसिबल नहीं. तो विल कंप्लीट दिस वन एंड देन विल डिस्कस द अदर थिंग ऑल्सो. Okay, so starting with the third cable, that is fiber optic cable. The only thing which is there in the fiber optic cable is that the data or the information travels, or the signal travels in this particular cable in the form of light. Okay, तो यहाँ पर आपका जो केबल, आपका जो सिग्नल है वो इलेक्ट्रिक सिग्नल के फॉर्म में यहाँ पर नहीं ट्रांसफर होता है, बल्कि यहाँ पर लाइट के फॉर्म में ट्रांसफर होता है. एंड यू कैन इमेजिन दैट के व्हाट कैन बी द स्पीड ऑफ लाइट. ओके, तो स्पीड ऑफ लाइट आपको मालूम है, ये बताएगा मुझे स्पीड ऑफ लाइट. 10 into power 3 into 10 into power 8. 10 to 10 ओके. तो ये जो स्पीड है ये आपकी लाइट की स्पीड है, और यहाँ पर हम लोग को जो स्पीड मिलती है, यहाँ पर भी बहुत अच्छी स्पीड मिलती है. इसके लिए नाउ डेज यू कैन सी दैट ऑलमोस्ट ऑल दी companies are they are just shifting on the fiber optic gigabit ethernet and all that, जो जो उन लोगों ने कॉन्सेप्ट लाया है. एटलीस्ट पहले हमारे घर में जो इंटरनेट आता था तो कोएक्शियल के थ्रू आता था. कोएक्शियल के थ्रू भी नहीं, लोग जो है ना सीधा ट्विस्टेड पेयर केबल के थ्रू. मेरे घर पे इंटरनेट था. फर्स्ट टाइम आई टूक इंटरनेट, फर्स्ट टाइम नहीं, सेकंड थर्ड फोर्थ टाइम जब मैंने लिया,
तो I got internet from the twisted pair cable. So twisted pair, I was in Govandi, so they used to bring from the terraces, okay, other लोगों के पीपल्स के टेरेसेस के ऊपर से गुजार के ला के कर करा के ट्विस्टेड पेयर केबल ला के दे दी। अब है ना, आपको मालूम है कि ट्विस्टेड पेयर केबल इज नॉट दैट मच रोबस्ट, ओके, इट इज दैट नॉट दैट मच रिलायबल आल्सो, ओके, नॉट दैट मच स्ट्रांग आल्सो, ओके। सो कहीं पतरा होता है, कहीं शेड होता है, तो शेड का या शार्प एजेस लग के वो कहीं कट भी जाता है, कभी कोई इसको काट भी देता है। नो पीपल यूज टू फ्लाई द काइट्स, ओके, तो उसके जो मांझा होता है, उसका जो डोर होती है, तो उससे भी कभी कट जाता है। सो लॉट ऑफ जितने भी है प्रोन टू, क्या बोलेंगे इसको, मतलब हार्म करने वाली चीज़ें जितनी हैं, तो सारी चीज़ वहाँ पर अवेलेबल थी। सो उसमें होता रहता था। सो अर्लियर वी यूज टू गेट द इंटरनेट फ्रॉम द ट्विस्टेड पेयर केबल। सो वहाँ से ट्विस्टेड पेयर केबल खींच के ला के, पूरा ऐसा गुजार के ला के हमारे घर पे वो लगता था। तो बाद में सोचा गया कि ट्विस्टेड पेयर केबल इज नॉट डन। हाँ, अंदर आप घर में यूज़ करो, ऑफिस में यूज़ करो उसको, वहीं केबलिंग के लिए यूज़ करो, सो दैट इज़ फाइन, ओके। बट वी कैन नॉट यूज़ इट फॉर फॉर ट्रैवलिंग पर्पज, फॉर आउटसाइड पर्पज, ओके, where this particular cable has to face all the type of environment also, like sun rays है, और बारिश है, धूप है, और फिर सर्दी है, तो ये सारी चीज़ें है। तो उससे भी उसका जो, और बाकी जो एक्सटर्नल जो मतलब के हार्म है, या जो एक्सटर्नल चीज़ें हैं जिसकी वजह से वो कट सकता है, टूट सकता है, तो वो सब चीज़ों से बचाने के लिए फाइबर ऑप्टिक केबल। अब फाइबर ऑप्टिक केबल थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है, बनाया है, रोबस्ट बनाया है। उससे मेरा मेरा तो ये मानना है कि उससे ज़्यादा जो रोबस्ट है, सो दैट इज़ योर कोएक्सियल केबल। कोएक्सियल केबल इज़ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, ओके। यू कांट इवन बेंड इट। आप फाइबर ऑप्टिक को तो आप बैंड भी कर लेंगे, बट आपके कोएक्सियल केबल को आप बैंड भी नहीं कर पाएंगे। सो फाइबर ऑप्टिक केबल की हम लोग बात कर रहे थे। सो दिस इज द ओनली केबल इन विच आर डेटा और आर सिग्नल गेट्स ट्रैवल इन द फॉर्म ऑफ लाइट, ओके। सो वी गेट मच हायर स्पीड एज कम्पेयर टू द ट्विस्टेड पेयर एंड कोएक्सियल केबल, ओके। तो दोनों के कंपैरिजन में यहाँ पर हमको स्पीड काफ़ी अच्छी मिलती है, बैंडविड्थ बहुत अच्छी मिलती है, ओके। Now coming to the construction of this particular fiber optic cable, okay, as you can see in the diagram, we have two part, okay. Your fiber optic cable is made up of a glass or plastic and transmit signal in the form of light. So you can see we have a core and we have a cladding. So your fiber optic cable is made up of glass. अभी जो ग्लास का जो पार्ट है वो कौन सा है आपका, क्लैडिंग जो पार्ट दिख रहा है, तो दैट इज द ग्लास पार्ट, ओके, और अ प्लास्टिक पार्ट। ये मतलब बेसिकली, चलो अभी इसको छोड़ दो, हम यहाँ पर आ जाऊँ। So we can say that our fiber optic cable is made up of two component. One is the cladding and second is the core. Okay, the cladding मतलब एक समझ लो, एक आगे डायग्राम है, क्या अच्छा वाला डायग्राम, और हाँ देखो ये डायग्राम है, ठीक है। सो दिस इज द एक्चुअल डायग्राम, और वो समझाने वाला डायग्राम, ठीक है। सो इन दैट डायग्राम यू कैन इजीली अंडरस्टैंड कि जो आपका इनर पार्ट है, ये जो आपका ये जो हिस्सा दिख रहा है, सो दैट इज नथिंग बट द क्लैडिंग, ओके। ये ऊपर ऊपर का जो हिस्सा है वो है क्लैडिंग, ओके। इसकी थिकनेस कुछ ना कुछ इसकी थिकनेस है, ओके। और उसके अंदर जो पार्ट है, जो एक बारीक सा रहेगा, जिसको हम लोग बोलेंगे कोर, ओके। लेट मी ड्रॉ इट। तो यहाँ पर जो एक छोटा सा वो रहेगा आपका कोर। थोड़ा सा सर्कल प्रॉपर नहीं आएगा, ये आपका बन गया कोर, ठीक है। अब यहाँ से आपकी जो सिग्नल है, आपका जो लाइट है, इट विल ट्रैवल इन दिस पर्टिकुलर कोर, ओके। और ये जो पार्ट है हमारा, तो ये है हमारा क्लैडिंग, ठीक है। तो ये हमारा पार्ट हमारा क्लैडिंग है। तो ये क्लैडिंग जो है, ये आपका ग्लास से भी बनता है, इसकी ये क्वालिटी भी है, या प्लास्टिक से भी बनता है, ठीक है। तो इट इज रिटन लाइक ग्लास भी है, प्लास्टिक है, तो दोनों में से कोई भी एक मटेरियल से दिस पर्टिकुलर क्लैडिंग इज मेड अप ऑफ, ओके। एंड आफ्टर दैट, चलो अंदर का कोर है, ये ना हॉलो पार्ट होता है, जो अंदर का जो पार्ट है ना, ये हॉलो पार्ट है, ठीक है। अगर आप उसका टॉप व्यू देखेंगे, तो ये रहा आपका आउटर, समझ लो। फिर उसके बाद में ये होगी क्लैडिंग, ठीक है। तो क्लैडिंग, चलो हम लोग क्लैडिंग काफ़ी, अच्छा, किसी क्लैडिंग कम ज़्यादा होती है, अलग अलग स्टैंडर्ड है। एज वी हैव सीन द स्टैंडर्ड इन द कोएक्सियल केबल एंड इन ट्विस्टेड पेयर केबल, वी आर ऑल्सो हैविंग सम स्टैंडर्ड इन द फाइबर ऑप्टिक केबल। फाइबर ऑप्टिक में किसी का गेज छोटा होता है, किसी का गेज बड़ा होता है, मतलब क्लैडिंग का जो पार्ट होता है वो कम ज़्यादा होता है। आई विल लेट यू नो अबाउट दोज स्टैंडर्ड। सी दीज आर द स्टैंडर्ड, दीज आर द फाइबर, डिफरेंट फाइबर साइजेस, ओके। मैं आपको उसके बारे में और बताऊंगा। अगर आप टॉप व्यू से देखेंगे तो आपको कुछ ऐसा लगेगा। उसके बाद में इसके ऊपर एक प्लास्टिक बफर है, बिकॉज के प्रोटेक्शन के लिए, मतलब इस क्लैडिंग के प्रोटेक्शन के लिए, नॉट फॉर अदर्स, ओके। दिस इज फॉर द क्लैडिंग प्रोटेक्शन। तो क्लैडिंग आपकी कहीं ना कहीं से
टूटे ना, कहीं कोई कुछ हार्म ना करे, इसके लिए क्लैडिंग को प्रोटेक्ट करने के लिए वी हैव वन मोर लेयर विच इज़ द प्लास्टिक बफर। ठीक है, अलग अलग नाम उसका आप लोग बोल सकते हैं, मेरा जो कितना गंदा डायग्राम आया है बट समझ के लो। दिस इज द प्लास्टिक बफर। उसके ऊपर फिर एक डू पॉन्ड कैवलर के डू पॉन्ड कैवलर फर्स्ट, ये जो कैवलर जो शीट होती है ना, ये कैवलर शीट बहुत ही स्ट्रॉन्ग शीट होती है। अगर आप लोग सर्च करेंगे इंटरनेट पे देन यू विल कम टू नो दिस कैवलर मटेरियल इज पुट इन द बुलेट प्रूफ जैकेट्स। ओके, तो जो आपके बुलेट एंड फायर प्रूफ जो जैकेट्स होते हैं, जो लोग मिलिट्री वाले पहन के घूमते हैं, या फिर स्पेशल ऑपरेशन है ऑपरेशन, तो उसके लिए जब जाते हैं उन लोग, तो वहां पे जाने से पहले उन लोग पहनते हैं, तो वो जो जैकेट होता है वो जैकेट के अंदर कैवलर मटेरियल होता है। ठीक है, सो दैट इज बेसिकली implemented, or that is basically put on the plastic buffer so that के more protection can be given to the plastic ना। मैं इतनी बात आप लोगों को क्यों कर रहा हूँ, so that you will just understand in brief, कि आप लोग इसका एक थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लेंगे। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है then you can easily write it down from your own, आप लोग खुद से, खाली डायग्राम आपने देख लिया ना, तो आप लोग खुद से लिख सकते हैं, आई एम श्योर अबाउट इट। ओके, सो द कंस्ट्रक्शन, क्योंकि जब whenever you are writing, क्योंकि इनिशियली क्या होता था पहले, whenever you are writing about any transmission media like fiber optic cable or twisted pair cable or coaxial cable, then first of all you need to start with the construction part. Okay, you need to explain the construction part of that particular cable, then बाद में उसके standard, then बाद में उसका फिर और उसके कुछ अगर है तो वो बाद में लास्ट में फिर उसके एप्लीकेशन वगैरह, उसके एडवांटेजेस ना, एवरीथिंग यू नीड टू राइट इट डाउन अबाउट दैट पर्टिकुलर ट्रांसमिशन मीडिया। ठीक है, तो the very first thing comes is the construction of any cable, the construction of any transmission media, and also we have seen in the previous one also कि हमने कोएक्सियल केबल का भी पहले कंस्ट्रक्शन ही पढ़ा, हमने ट्विस्टेड पेयर केबल का भी पहले कंस्ट्रक्शन ही पढ़ा। ओके, सो इन द सेम वे वी आर हैविंग कंस्ट्रक्शन फॉर द फाइबर ऑप्टिक केबल। ओके, तो यहाँ पर डायग्राम से आप लोग शायद ना समझते थे, इसके लिए मैंने आप लोग को, मैं इसके पर बाद में आता हूँ, पहले हम लोग ये कर लेते हैं। ओके, सो दिस इज द कैवलर मटेरियल फॉर स्ट्रेंथ पर्पस फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ दिस प्लास्टिक बफर। ओके, और उसके ऊपर लास्ट में फिर एक आउटर जैकेट बचाने के लिए, मतलब धूप गर्मी सर्दी से बचाने के लिए आउटर जैकेट है। ठीक है, एक लास्ट कवरिंग तो चाहिए जो कि इस कैवलर मटेरियल को प्रोटेक्ट करे। तो एवरीवन इज प्रोटेक्टिंग द थिंग विच इज इनसाइड। तो अंदर का कोर है विच इज वेरी वेरी डेलिकेट। ओके, so that particular core is being surrounded by the cladding which is made up of glass and plastic core, and in order to protect this glass and plastic core we have this material that is plastic buffer, or we can say plastic material or plastic mesh। okay, and after that in order to protect these जो भी यहाँ के इतने सारे जे भी है, ये सब को प्रोटेक्ट करने के लिए we have some Kevlar protection। okay, we can say Kevlar material for the strength purpose, and after that in सबको प्रोटेक्ट करने के लिए we have outer jacket। okay, so this is the complete construction of this fiber optic cable। okay, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। इसमें बस खाली आपको डायग्राम देखना है और डायग्राम देख के आपको इसमें एक्सप्लेन करना है, तो देयर इज नो complexity in this particular construction। okay, now coming back to the first diagram, what was there in the first slide, so now you can easily see that this is the construction of fiber optic cable where we can see this is a cladding part। now अभी केबल को ऐसा रख के उसका एक साइड व्यू लिया गया है। ठीक है, ये इसका एक एंड यहाँ पर, एक एंड यहाँ पर। ठीक है, सो दोनों आपका केबल सामने है, एक एंड यहाँ पर, दूसरा एंड यहाँ पर, तो सामने से आप केबल देख रहे हैं। ठीक है, सो हाउ यू विल लुक और हाउ द केबल विल लुक्स लाइक। ओके, द अपर पार्ट एंड द लोअर पार्ट यू कैन सी, यू कैन कंसिडर इट एज अ क्लैडिंग पार्ट। ठीक है, बिकॉज ये आपका पूरा राउंडेड है, क्लैडिंग आपकी ऐसी पूरी राउंडेड है। लाइक अगर आप उसको टॉप व्यू देखेंगे ना, अगर कभी यहाँ से अगर उसका व्यू देखेंगे तो आपको ये कुछ ऐसा नजर आएगा। ठीक है, आपको कुछ ऐसा नजर आएगा जिसमें आपका जो क्लैडिंग पार्ट, मतलब ये एक्चुअली स्क्वायर नहीं रहेगा, ये सर्कल रहेगा। ठीक है, और उसके अंदर आपका ये कोर पार्ट ये रहेगा। ठीक है, तो ये जो कोर पार्ट है आपका यहाँ से टॉप व्यू से दिखेगा, ये आपका टॉप व्यू। ठीक है, सो दिस इज द क्लैडिंग पार्ट। क्लैडिंग पार्ट इज मेड अप ऑफ प्लास्टिक और ग्लास। ओके, तो वो आपकी क्वालिटी पे डिपेंड है। ठीक है, जैसी क्वालिटी का फाइबर ऑप्टिक लेंगे उसके हिसाब से। ग्लास की जो क्वालिटी होती है वो थोड़ा डेलिकेट तो होता है, लेकिन उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। एंड वहाँ पर हमारा जो रिफ्लेक्शन वगैरह जो हमारे देखें, आप लोग देख रहे हैं, आपका जो सिग्नल है उसमें जो ना डिस्टॉर्शन बहुत कम होता है। प्लास्टिक में थोड़ा सा डिस्टॉर्शन होता है, बट अभी अगर आप प्रैक्टिकली आप बात करेंगे, so we'll go to market, then you will take out the rate
सो आपको उसके हिसाब से पता चलेगा, ठीक है। सो द क्लैडिंग पार्ट इज देयर, ओके, the outer part is the cladding part and the inner part is the core part, okay, and your signal travels in this core part only, okay. This is not mandatory or this is not necessary that के your signal will travel straight only, कि यहाँ से अभी गोली की तरह अगर आपका सिग्नल निकला तो बराबर ऐसा चले जाके रिसीवर तक पहुंच के, ऐसा है नहीं। आपका जो फाइबर ऑप्टिक केबल है वो ऐसा आया, फिर यहाँ से ऐसा गया, फिर ऐसा गया, फिर ऐसा आया, फिर ऐसा ऐसा ऐसा, फिर कहीं कहीं पर भी जा सकता है, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें हो सकती है, पॉसिबिलिटी है। तो इसके अंदर आपका जो सिग्नल है, मैंने ज़्यादा ध्यान कर दिया यहाँ पर, तो यहाँ पर तो दिस इज द कोर पार्ट, क्लैडिंग पार्ट। तो यहाँ पर आपका यूर डेटा, यूर सिग्नल और यूर डेटा इन द फॉर्म ऑफ लाइट, ओके। तो आप बोलोगे सर लाइट कैसे जनरेट हो रही है यहाँ पर, हमारा डेटा तो 01 के फॉर्म में, यहाँ पर 0101 के फॉर्म में, बट यहाँ पर हमारे पास में कुछ ऐसे छोटे से इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो कि हमारी मशीन में इनबिल्ड होते हैं, जहाँ से हमारा फाइबर ऑप्टिक कनेक्टेड है। तो वहाँ पर छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट होते हैं, एंड दी इंस्ट्रूमेंट मैं आपको नाम बताऊँगा, लाइट एमिटिंग डायोड एंड अदर, ऐसा कुछ 2-3 होते हैं इनके। तो ये क्या करते हैं, आपके डेटा को कन्वर्ट करके लाइट के फॉर्म में करके अंदर यहाँ पे ऐसा रखते हैं और जोर से धक्का दे देते हैं यहाँ से, ठीक है। जब इतनी जोर से धक्का देते हैं तो फिर आपका जो सिग्नल है, आपका जो लाइट है इन द फॉर्म ऑफ लाइट, योर सिग्नल और योर डेटा और योर इन्फॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ लाइट, पहले तो चलती है दूर तक, हाँ चलती है मस में, फिर ओके हो सकता है थोड़ा सा बेंट हो रहा है, कहीं आपका वायर कहीं पे बेंट हो रहा है, तो कहीं इधर टकरा गई, यहाँ से इधर टकरा गई, इधर टकरा गई, टकरा के रिसीवर तक पहुँच गई, ओके। तो दिस पर्टिकुलर डिस्टॉर्शन इज द मिनिमम डिस्टॉर्शन, कोई ज़्यादा मतलब नेग्लिजिबल है डिस्टॉर्शन, कुछ ज़्यादा नहीं रहता। So your signal reaches at the receiver, in the faster time, the less time as compared to the previous one. Okay, so the cladding part, just need to remember, you have to remember this thing, that your fiber optic cable is made up of the cladding and core part. Okay, the cladding is the outer material. Okay, and the core part is the it is the hollow space which is inside the cladding part, from which your signal or your light is traveling. Okay, तो एक हॉलो पार्ट होता है जहां से आपका लाइट क्या होता है, ट्रैवल कर रहा है, ओके। समझ में आ रहा है आप लोग को, तो खाली ऊपर से जा रहा है? प्लीज लेट मी नो। फाइबर ऑप्टिक केबल समझ में आ रहा है? जस्ट वी हैव सीन द कंस्ट्रक्शन पार्ट ऑफ दिस फाइबर ऑप्टिक केबल, पीपल्स आर अंडरस्टैंडिंग? यस सर। ओके ओके, सो thank you so much. Okay, so now coming to the next part, that is fiber sizes. Okay, as I told you that we are having different sizes of the fiber. This is very simple thing, just need to go through the table, then we easily come to know okay, why these different sizes are available. We have size of 50 by 125. This is called as 50 by 125, 62.5 by 125, 100 by 125 and 7 by 125. Okay, so what it does mean? These are the different types of fiber. It means that the core part is made up of 50 micrometer, मतलब जो भी इनका यूनिट है, दिस इज माइक्रोमीटर ही होगा इनका, बिकॉज बहुत थिन है तो इसकी जो साइज रहेंगी वो बहुत कम रहेगी, ठीक है। सो द फर्स्ट टाइप इज ऑफ 50 by 125, जिसके अंदर 50 आपका जो कोर है, मतलब जो इनर पार्ट है, आपका 50 माइक्रोमीटर का है, और उसके बाद में आपका जो क्लैडिंग पार्ट है दैट इज ऑफ 125 माइक्रोमीटर, मतलब कि यहाँ पर कोर अच्छा खासा हमारे पास में दिया है उसने। एंड यू कैन सी द वन थिंग इज देयर, आपका जो द क्लैडिंग पार्ट है विच इज कॉमन इन ऑल द टाइप्स ऑफ फाइबर, ठीक है। सो क्लैडिंग को हम लोग को स्टैंडर्ड रखना पड़ता है, बिकॉज क्लैडिंग पार्ट विच इज द वन विच इज सपोर्टिंग योर कोर पार्ट, ओके। तो क्लैडिंग पार्ट को जो है ये हमारा सेम है इन ऑल द टाइप ऑफ फाइबर विच इज 125 माइक्रोमीटर, ओके। तो ये है आपका क्लैडिंग पार्ट। अभी हमारा कोर पार्ट कम ज़्यादा होते रहता है। नाउ यू कैन इजीली सी कि अगर आपका कोर पार्ट कम होगा तो उसकी साइज भी कम होगी। जब साइज कम होंगी तो ये हमारा मतलब जिसको हम लोग बोलेंगे आपका जो सिग्नल ट्रैवल का जो रहेगा, अब जाहिर बात है अगर इतनी बड़ी जगह है, नाउ यू कैन सी इतनी बड़ी जगह है, तो यहाँ से अगर कभी 3 लोग पास हो रहे हैं, 1 2 3 लोग पास हो रहे हैं, अगर मैं साइज को कम कर दूंगा, इतनी अगर कर दूंगा, तो एट ए टाइम ओनली 1 person कैन पास फ्रॉम दिस पर्टिकुलर स्पेस, ओके। सो दिस इज द सिंपल कॉन्सेप्ट यहाँ से कि अगर आपका कोर आप कम करते हैं, सो इन दैट केस
आपका वो, इसको हम लोग बोलेंगे, यहाँ पर नाम दिया उसका ग्रेडेड इंडेक्स एंड सॉरी मल्टी मोड एंड सिंगल मोड। ओके, तो सिंगल मोड में बेसिकली देखो यहाँ पर आपका जो कोर पार्ट है दैट इज ओनली 7 माइक्रोमीटर विच इज वेरी वेरी थिन। ओके, तो 7 माइक्रोमीटर में आप यू कांट एक्सपेक्ट मल्टीपल और वी कैन से multiple signals, multiple lights are traveling from that particular space. So we can simply say that okay, this is single mode fiber. So we have two types of fiber also. यहाँ पर देखो मैंने लिखा हूँ, when they travel, so they travel in this two mode. One is multi mode and second is the single. ये हमारे इसमें नहीं है बट फिर भी मैंने ऐड किया हूँ जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन कि we have two different mode, one is the single mode and multi mode. Now you can easily understand कि यहाँ पर आप single mode क्या है, multi mode क्या है। सिंगल मोड मल्टी मोड के अंदर एक ये है, यहाँ पर देखो मैंने एग्जांपल लिया हूँ यहाँ पर। सिंगल मोड के अंदर वी आर हैविंग वेरी थिन कोर, देखो यहाँ से यहाँ तक आप लोग देख सकते हो। और इस केस में हमारा जो कोर पार्ट है विच इज 7 माइक्रोमीटर। ठीक है, तो हमारा 7 माइक्रोमीटर का मतलब बहुत ही छोटा है, इसके अंदर से आप यू कांट एक्सपेक्ट मल्टीपल। तो आप खाली एक पास, यानी कि आपका सिंगल लाइट विल ट्रैवल एट अ टाइम। So this is the one type, that is single mode fiber, in which at a time only single light or single signal can be passed. Okay, we have one more, that is मतलब जिसको हम लोग बोलते हैं मल्टी मोड। तो मल्टी मोड के अंदर बेसिकली यहाँ पर अगेन उसके दो टाइप्स है, वन इज द स्टेप इंडेक्स, सेकंड इज द ग्रेडेड। जस्ट फॉर योर रेफरेंस उसको रेफरेंस सेक्शन में लेके अपने पास में रखो खाली, कि सिंगल मोड होता है जहाँ पर एक ही सिग्नल ट्रैवल करता है, एक लाइट एक टाइम पे ट्रैवल करती है। और एक होता है मल्टी मोड, मतलब मल्टीपल मोड, मतलब मल्टीपल सिग्नल्स और मल्टीपल लाइट्स कैन ट्रैवल एट अ टाइम फ्रॉम योर फाइबर, बिकॉज यू आर हैविंग क्वाइट बिग स्पेस ओवर हियर। कहाँ पर है हमारे पास में, वी हैव 50 माइक्रोमीटर का कोर, वी हैव 62.5 माइक्रोमीटर का कोर, we have 100 micrometer का core. Okay, so these are very good core part. So we can have multiple fiber, sorry, we can have multiple signals, we can have multiple lights which can travel from this particular core. So we have a very good sizes over here, but for this particular size, that is 7 by 125, it is very very thin. Okay, the core part is very thin, so you can't expect multiple signals to be traveling from this particular टाइप ऑफ सिग्नल। तो दिस इज वेरी कॉमन, और आपके सामने डायग्राम है, वैल्यूज है, तो इजीली हम लोग को उससे समझ में आ जाएगा। ठीक है, सो फाइबर साइजेस, कॉमन साइजेस मैंने आपको यहाँ पर बताया, एंड दिस इज द प्रोपगेशन मोड, एंड दिस आर द डायग्राम। केबल कंपोजिशन देखो यहाँ पर है, तो केबल कंपोजिशन की हम लोग बात करते हैं। तो ये जो आपको मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया हूँ वही सब चीज़ यहाँ पर है, बट दे आर रिटन द स्टैंडर्ड वे। ओके, मैंने ऐसे नहीं बोल दिया कि यहाँ पर एक प्लास्टिक जैकेट होता है, फिर ऊपर से कोर होता है, ये अंदर से कोर है, ऊपर से क्लैडिंग है, ऊपर से प्लास्टिक जैकेट, एंड देन उसके बाद में फिर एक कैबलर मटेरियल है। तो हम हमारा एक्सप्लेन करना दैट इज डिफरेंट, एंड द थिंग्स which has been taken from the book, so that is different. Okay, so this the outer jacket is made up of either PVC और टेफ्लॉन। ओके, so ये जो मटेरियल होते हैं आपके, तो ये मटेरियल काफ़ी अच्छे होते हैं। पीवीसी आप लोगों को पता है, टेफ्लॉन पता है, अगर आप नेट पे सर्च करोगे तो दीज आर द मटेरियल विच आर यूज्ड इन द cables for their outer strength. Inside the jacket are Kevlar stands होते हैं, मतलब बेसिकली स्टैंड जिसको हम लोग बोलेंगे ना, उसका मैं एक्चुअली एक मेडिकल टर्म है स्टैंड्स। तो जिसको हम लोग बोलेंगे, एनीवन कैन, एक
सॉरी गाइस, एक्चुअली वही मैं आपको बोला, अनअवॉइडेबल कॉल्स। ओके, so we were talking about this particular material, this PVC, Teflon, Kevlar stands। अच्छा, जो Kevlar stands होते हैं इसके अंदर मतलब बेसिकली इनके एक ना एक जिसको हम लोग बोलेंगे, anyone has any idea about the Kevlar stands? केवलर मटेरियल तो ये ऐसे मटेरियल है जो कि सब मतलब जैकेट्स वगैरह में यूज होते हैं, जो मतलब हार्ड जैकेट्स होते हैं या फिर केबल्स में यूज होते हैं। अगर उसको आपको प्रोटेक्शन देना है, स्ट्रेट इसको स्ट्रेट रखना है, तो उसके लिए स्टैंड्स डाले जाते हैं। अगर आपको किसी चीज को अगर मतलब स्ट्रेट रखना है ना, उसको अगर बेंट नहीं होने देना है, तो वी पुट सम काइंड ऑफ स्टैंड्स। ओके, अक्सर मतलब सर्जरी टर्म्स में मैंने ये चीज सुना हूँ डॉक्टर से, स्टैंड्स डालें, तो दो स्टैंड्स आर नथिंग बट जस्ट टू स्ट्रेट समथिंग। तो वैसा कुछ मटेरियल होता है ये, विच आर यूज्ड इन दिस पर्टिकुलर केबल इन ऑर्डर टू प्रोवाइड गुड स्ट्रेंथ टू द केबल। ओके, सो चलो कोई बात नहीं। So these are the different types of materials only which are put in the cable in order to give it more strength. Okay, then Kevlar is a strong material used in the fabrication of bulletproof vest. Okay, तो as I told you that के जो bulletproof jackets होते हैं उसके अंदर Kevlar material डालते हैं। Below the Kevlar is another plastic coating to cushion the fiber. तो फाइबर को कुशन देने के लिए, थोड़ा सा सॉफ्टनेस देने के लिए, there is another material that is plastic coating. As you can see, there is a plastic coating. तो कहाँ पर है? प्लास्टिक बफर है, ठीक है। तो केवलर के नीचे प्लास्टिक बफर है। उसके बाद में और क्या भाई? The fiber is at the center of the cable and it consists of cladding and core. Okay, so as we can see there is a fiber, इसको पूरे को उसने फाइबर बोला है because the fiber consists of the cladding and core. ठीक है, दोनों से मिलकर बनता है। outer part is the cladding and inner part is the core. ठीक है, so this is the construction again, construction को अलग से mention किए। so क्या पढ़ा इसके बारे में हम लोग ने? fiber optic cable, there are different sizes or we can see the standard. These are the common sizes which are available, so we can buy according to our need, according to our requirement. Then these are the propagation mode, which are multi-mode and single mode. Sorry, which are single mode and multi-mode. In single mode, single light or or signal can be travel. Okay, can travel from the fiber, and multi-mode we can have multiple signals. So cable composition, as you can see, we have just done cable composition made up of the outer jacket, then plastic jacket, दोनों के बीच में केवलर स्ट्रैंड। अच्छा देखो, ये इसको ज़्यादा बेंट ना हो उसके लिए केवलर स्ट्रैंड डालें, ठीक है, मतलब केवलर मटेरियल डालें। सो यू कैन सी जो आपको दिख रहा है थोड़ा स्ट्रेट करने के लिए दिख रहा है, ठीक है। सम काइंड ऑफ सॉफ्ट रॉड, ठीक है, सम काइंड ऑफ सॉफ्ट एंड हार्ड मटेरियल, दोनों का कॉम्बिनेशन, ताकि आपका बैंड भी ना हो और एकदम स्ट्रेट भी ना रहे। तो ये इसका कंपोजिशन। Now coming to the next part, that is connector. Okay, fiber optic cable के connectors कौन कौन से हैं? As we have seen for coaxial cable, in the coaxial cable we have seen BNC connector. Okay, Bayon क्या नाम था उसका? Conselman Neil ऐसा कुछ तो था, ठीक है। तो we have this connector. We have again three different types of connectors you can see in the diagram. One is the SC connector, second is ST connector, and third is MTRJ connector. Okay, so these are the three different types of connector which are used with the fiber optic cable. अब आपने इसमें से कौन सा देखा होगा पता नहीं, तो मैंने तो ये वाला देखा हूँ, MTRJ वाला देखा हूँ, विच आर नॉर्मली हमारे पास होता है। तो चलो देखते हैं इनके बारे में क्या क्या बोल रहे हैं। So we have three different types of connectors for fiber optic cables, like SC, simply called as SC, but it is subscriber channel connector which is used for the TV cables. It uses a push-pull locking system. So as you can see, SC connector, कहाँ है SC connector? So we have some kind of push and pull mechanism over here, so that we can connect it to any TV set or any other end device. Especially उसने TV mention किया है. It uses push and pull locking system also. The straight tip ST connector, as you can see यहाँ पर ST connector is the next connector. So ST connector is used for connecting cables to the networking devices. If you want to connect your cable to any networking device, then your ST connector can be used. Okay, देखो सबका यहाँ पे यूज ही अलग अलग है। जैसे कि हमारा BNC T connector, terminal connector used to branch out the cable, BNC नॉर्मल कनेक्टर अगर है तो वो एंड डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए। एंड नाउ द लास्ट वन, इफ देयर इज BNC टर्मिनेटर,
then it is used to end the cable के end पर properly इसको end करने के लिए we use that type of cable. Okay, so यहाँ पर हमारा SC जो केबल है that is first used for the TV केबल की टीवी के लिए, और मतलब अगर केबल आया है तो उसके लिए आप वहाँ पे SC कनेक्टर यूज कर सकते हैं. अगर स्ट्रेट टिप केबल है तो दैट कनेक्टर कैन आल्सो बी यूज्ड फॉर कनेक्टिंग दी नेटवर्किंग डिवाइसेस. ओके, इफ यू वांट टू कनेक्ट टू एनी नेटवर्किंग डिवाइस देन उसको हम लोग स्विच को लगाना है, राउटर को लगाना है तो उसके लिए हम लोग लगा सकते हैं. इट यूजेज अ bayonet लॉकिंग सिस्टम एंड इट इज मोर रिलायबल देन SC. तो यहाँ पर एक लॉकिंग सिस्टम होता है जिसको हम लोग bayonet लॉकिंग सिस्टम कहते हैं. सो उनका उसका जो भी मैकेनिज्म हो दैट वी आर नॉट इन दैट, हमारा कंसर्न नहीं है, बट स्टिल इट इज हैविंग दैट लॉकिंग सिस्टम व्हिच इज इफेक्टिव and it is more reliable than your subscriber channel, मतलब कि sorry we can say SC connector. Okay, the last one is MTRJ connector which is again used for the end devices. I have not written over here, but MTRJ connector is, you know, it is same as the RJ45 connector which is used to connect your end devices, and you know the RJ45 connector is also one which is used to connect your end devices. Okay, so there's a diagram MTRJ connector. So this is the, you know, diagram of any of these cables. Okay, so these are the three cables. The main important thing is that exam mein aaya na aaya, that is not important, but you need to remember, you need to keep in mind that these are the connector which is used for fiber optic cable. Okay, आपको याद रखना है SC ST ये तो आई थिंक ये सब कास्ट के नाम हो गए हैं, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब वगैरह ऐसे कुछ हो गए. SC ST RX ये आपका MTRJ connector. So these are the three different types of cable you need to keep in mind which are used for fiber optic cable. Okay, some advantages of fiber optic cable I have यहाँ पर मैंने रखा हूँ, कुछ disadvantages रखा हूँ. चलो एक बार go through कर लेते हैं, 5 मिनट है. Advantages: higher bandwidth of absolutely, because we are using the light, we are traveling, sorry we are not traveling, our data is getting traveled by means of light, so we are getting much more better speed as compared to the previous one. Okay, less signal attenuation. Anyone can explain me what is attenuation? Basically it is related to आपका signal distortion. Okay, तो अटेनुएट आपका सिग्नल जो होगा वो कम होगा, मतलब अटेनुएट बेसिकली जब आपका सिग्नल मतलब कि ट्रैवल करता है तो यहाँ पर हम लोग को सिग्नल का डिस्टॉर्शन देखने में आता है, बिकॉज कॉज ऑफ सम एक्सटर्नल पैरामीटर, मे बी फ्रॉम एक्सटर्नल मे बी फ्रॉम इंटरनल, हो सकता है कि कहीं से टकरा के कहीं से थोड़ा थोड़ा डिस्टॉर्शन हो. तो यहाँ पर बहुत ही कम डिस्टॉर्शन आपको देखने मिलेगा इन फाइबर ऑप्टिक केबल. ठीक है, सो अटेनुएशन इज बेसिकली प्योरली इलेक्ट्रॉनिक का वर्ड है, इसके लिए हम लोग के गो थ्रो नहीं करते हम लोग उसको. इम्यूनिटी टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस, अगर आपका फाइबर ऑप्टिक केबल किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस में से भी पास हो रहा है तो इसके अंदर काफ़ी जान होती है, बहुत स्पीड से निकलता है, किसी के हाथ नहीं आता. सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज इम्यूनिटी टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस आल्सो. रेसिस्टेंस टू कोरोसिव मटेरियल. ओके, तो आपका मतलब जो केबल है आउटरली इसको भी काफ़ी मतलब अच्छी स्ट्रेंथ दी है, और उसके अलावा भी अंदर से बाहर से दोनों जगह से इसको काफ़ी अच्छा मतलब के रोबस्ट बनाया, सो दैट के जो मटेरियल भी रास्ते में मिलेंगे, जहाँ से फॉर एग्जांपल कहीं केबल को आपने टेरिस पे से ले लिया, कहीं से बेंट हो रहा है, कुछ प्रेशर पड़ गया, कुछ वजन गिर गया, कुछ इसके ऊपर वेट गिर गया है, तो स्टिल योर फाइबर ऑप्टिक कैन सर्वाइव इन दिस कंडीशन ऑल्सो. लाइट वेट है एज कम्पेयर टू द फाइबर ऑप्टिक एंड कोएक्सियल केबल, स्पेशली as compared to the coaxial cable. This is, you know, very lightweight. Great immunity to tapping. Okay, you know what is tapping? आप लोग को पता है tapping क्या होती है? The tapping is the process in which someone is trying to capture the part or the communication part, या पैकेट जो भी ट्रैवल कर रहे हैं, या फिर it will try to hear what is going on. Okay, या फिर जो कम्युनिकेशन हो रहा है किसी का, फॉर एग्जाम्पल 2 लोग बात कर रहे हैं. Okay, and I will put some kind of dictaphone over there and I will try to hear what they are communicating. Okay, so what I'm doing, I'm tapping. Okay, if 2 people are communicating on I think maybe on intercom पे बात कर रहे हैं, घर में 2 लोग intercom बात कर रहे हैं, मैं तीसरी जगह से फोन उठा के उनका फोन को क्या कर रहा हूँ, सुन रहा हूँ. so that is called as tapping. Okay, तो interfering in someone's communication. so immunity है काफ़ी, tapping possible नहीं है यहाँ पर. आपका जो data है and all these things are cause of your you know signal which is traveling in the form of light
So that is the main reason why all these things are not happening in the fiber optic cable. Okay, so these are the some advantages we can mention. Some disadvantages, installation and maintenance. Obviously installation and maintenance के अंदर सबसे पहले तो खर्चा आपका costing वाला है, which I've written in the third line. सबसे पहला महंगा आता है, because as compared to the twisted pair cable and coaxial cable, this is costlier also. And ये एक और डिसएडवांटेज ये भी है कि यूनिडायरेक्शनल लाइट प्रोपगेशन है. ओके, इफ द लाइट्स आर ट्रैवलिंग, ऐसा अगर कभी ट्रैवल कर रही है तो मतलब ऐसा बोलते थे पहले, बट नाउ वी हैव मोर इम्प्रूवमेंट इन दिस पर्टिकुलर फाइबर ऑप्टिक केबल दैट वी कैन हैव अ टू वे कम्युनिकेशन ऑल्सो. इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस के अंदर भी खर्चा आएगा, बिकॉज इंस्टॉलेशन उसके लिए जो आपको डिवाइसेस विच आर रिक्वायर्ड फॉर द इंस्टॉलेशन पर्पज, दैट ऑल्सो आर कॉस्टली. एंड फॉर मेंटेनेंस पर्पज ऑल्सो, इफ कहीं से कुछ प्रॉब्लम हो ही गया है, कहीं कट ही गया है, नेचुरल डिजास्टर सम काइंड ऑफ थिंग, सो हो सकता है उसके अंदर भी आपको ज़्यादा खर्चा पड़े. तो दीज आर द सम डिसएडवांटेज वी कैन मेंशन फॉर फाइबर ऑप्टिक केबल. और भी बहुत सारे हो सकते हैं, आपको बुक्स में यहाँ वहाँ मिल जाएंगे, बट स्टिल ये मैंने इसमें से निकाल पाया. ठीक है, सो यहाँ तक आप लोग का जो था वो अकॉर्डिंग टू दी सिलेबस था. ओके, इसके आगे जो भी है वो आपका सिलेबस में नहीं है, बट स्टिल इफ यू विल गेट टाइम देन वी विल कवर दिस पार्ट ऑल्सो. थोड़ा सा ये वर्चुअल लैन वाला पार्ट और ये प्रोपगेशन वाला पार्ट तो मैं एटलीस्ट आपको कवर करवा सकता हूँ. ठीक है, तो ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में या फिर कभी भी जब टाइम मिला तब देखेंगे, बट फ्रॉम नेक्स्ट लेक्चर विल स्टार्ट द थर्ड चैप्टर. okay, so we'll stop over here. Maybe let me stop the recording first.